Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis. We were discussing Taylor series. In the previous lecture, we have discussed Taylor's theorem, and through that theorem, we were writing a series representation of a function around some point. इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से किसी गिवन फंक्शन के लिए हम रिक्वायर्ड पॉइंट के अबाउट टेलर सीरीज लिख सकते हैं. The crucial idea is whenever we are able to write the Taylor series, then that Taylor series which is representing some function is always unique. Okay? और जब भी हम किसी फंक्शन को सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट पॉइंट इज इंटीरियर टू सम सर्कल, देन द पावर सीरीज, वॉट एवर द पावर सीरीज इन विच we are representing that function is always a Taylor series. Okay? So let me point out these two important observation, then we will come to some example. Okay, so let us start. The first thing is that any Taylor series representing, that observation is very important. Okay, we will also point out in some example, representing a function f of z about a given point z naught is unique. Okay, this is about the uniqueness of Taylor series. अगर हम किसी फंक्शन के लिए टेलर सीरीज लिख रहे हैं और किसी पॉइंट के अराउंड लिख रहे हैं तो हमेशा वो टेलर सीरीज यूनिक ही मिलेगी. ठीक है. ऑल्सो मोर प्रिसाइजली, इफ f of z is equal to summation n running from 0 to infinity a n z minus z naught to the power n. This is the series. Okay, for if f of z can be written as this series for all points z interior to some circle centered at z naught, then the power series here must be the Taylor series for the function f about the point z. Okay, so these are two observation that is very important. Now let us come to the examples that we are going to discuss. First of all, that we have discussed various fundamental series or various fundamental series representation of elementary functions. Let me point out these series first. The first series is of 1 upon 1 minus z. हालांकि हमने इनका सीरीज रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई भी किया है, बट क्योंकि ये सीरीज रिप्रेजेंटेशन एक टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, सो विल आइडेंटिफाई कि इस फंक्शन को हम इस तरीके से टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख पा रहे हैं. ठीक है, यूजिंग द टेलर्स थ्योरम, z and that is equals to 1 plus z square plus and so on, and its reason of convergence is mod of z is less than 1, that we know. The second series is e to the power z, and its a series representation is n running from 0 to infinity z to the power n over n factorial, and if you expand this, then we will have 1 plus z over 1 factorial plus z square over 2 factorial plus and so on, and its a reason of convergence is entire complex plane. Okay, देन बिकॉज क्योंकि ये e टू द पावर z तो एंटायर फंक्शन है,
तो इसका ये जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ट्रू फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर. Now if you want to identify the series representation of sin z, then it is nothing but summation and running from 0 to infinity minus 1 to the power n z to the power 2n plus 1. ये वही है जो हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा है. यहाँ हम इसको और आइडेंटिफाई करेंगे फॉर द कॉम्प्लेक्स प्लेन. ये रियल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ मैं कि हमने रियल एनालिसिस में इन सभी को पढ़ा ही है. दैट इज इक्वल्स टू z minus z cube over 3 factorial plus z to the power 5 over 5 factorial and minus so on. And it's again क्योंकि ये एक entire function है तो इसका region of convergence भी entire complex plane ही होगा. Now if we want to identify what is this series representation for cos, obviously we know from the real analysis, and the same is true for the complex analysis also, and running from 0 to infinity, and this is minus 1 to the power n. Now the powers are even over 2n factorial. That is equals to, if you can see, 1 minus z square by 2 factorial plus z to the power 4 over 5 factorial plus and so on. This is minus, okay, minus and so on. Again the region of convergence is entire complex plane. Now if you come to the hyperbolic function, that is sine hyperbolic z, then again we will identify कि ये सीरीज आती कैसे है, but from the real analysis we know for the same complex variable we can write z to the power 2n plus 1 over 2n plus 1 factorial. Okay, that is quite simple. Z plus z cube over 3 factorial. हमने एनालिसिस में पढ़ा है x plus x cube over 3 factorial, then x to the power 5 over 5 factorial and so on. यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए सेम ही सीरीज पढ़ रहे हैं. अगेन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन. नाउ द सेम थिंग cos hyperbolic z, that is equals to summation and running from 0 to infinity z to the power 2n over 2n factorial. Okay, and that is equals to 1 plus z square over 2 factorial plus z to the power 4 over 5 factorial and so on, and that region of convergence is entire complex plane. Now ये जितनी भी सीरीज हैं वो हमें पता होनी ही चाहिए. अगर नहीं भी पता है तो आप भी यहाँ से देख सकते हैं. डोंट वरी, हम इस फंक्शन को इस सीरीज की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और ये सीरीज कैसे एक टेलर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इन सभी के बारे में हम थ्रू आउट दिस लेक्चर समझने वाले हैं. ठीक है, सो लेट अस आइडेंटिफाई द फर्स्ट एग्जांपल दैट डील विद द फर्स्ट सीरीज. सो लेट मी राइट एग्जांपल 1. Okay, find the Taylor series for the function, which function f of z is equal to 1 over 1 minus z. इसे हमें सीरीज की फॉर्म में लिखना है और हम देखेंगे कि जब हम टेलर्स थ्योरम को यूज करके इसका सीरीज रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई करेंगे तो वो यही आएगा. ठीक है, f of z इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस z अबाउट, बिकॉज हमें कोई ना कोई पॉइंट भी चाहिए, सो वी विल राइट अबाउट z नॉट इज इक्वल टू 0. ओके, जब कोई भी सीरीज z नॉट इक्वल टू 0 के अराउंड लिखते हैं तो उसे हम मैक्लॉरिन सीरीज कहते हैं, और मैक्लॉरिन सीरीज टेलर सीरीज का एक पर्टिकुलर पार्ट है. ठीक है, सो लेट अस आइडेंटिफाई कि अभी जो हम सीरीज लिखेंगे, अगर आप समझें कि वो टेलर सीरीज है या मैक्लॉरिन सीरीज है, तो इन जनरल वो एक टेलर सीरीज है. बट अगर आप स्पेसिफाई कर देंगे कि z नॉट पॉइंट 0 है तो वही टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज बन जाती है. ठीक है, अब सबसे पहले हम z नॉट पॉइंट को देखते हैं और यहाँ पर
हम इस फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये दोनों पॉइंट्स कहाँ आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे फंक्शन एफ ऑफ जेड को जेड इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम है और हमारा सेंटर 0 होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट 1 है, दिस इज आवर 1। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि हम हमारे सेंटर से चलेंगे और चलते हुए कहाँ पर हमें पहली सिंगुलैरिटी मिल रही है, हम उसी रेडियस का एक सर्कल बना के और वही उसी से हम एक डिस्क को ऑब्टेन कर लेंगे, राइट। सो लेट मी डू दैट। अभी जो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं उसमें हम बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि बाउंड्री में हम जैसे ही 1 को लेके आएंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 को तो हम नहीं ले सकते इसके अंदर, राइट। दिस इज आवर पॉइंट 1। ओके, अब ये जो डिस्क है दैट इज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 में 1 पॉइंट भी आएगा, इसका मतलब वहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और नहीं है इसलिए हमने वो सारे पॉइंट्स ले लिए हैं जो इस सर्कल के अंदर है। दैट इज दिस डिस्क इज रिप्रेजेंटिंग दी area of convergence for this series or the area of analyticity for this function fz। ओके, तो जब भी आपको कोई फंक्शन गिवन है और इसके लिए आपको किसी पॉइंट के अराउंड टेलर सीरीज पूछा जा रहा है तो आप सबसे पहले देखेंगे फंक्शन की सिंगुलैरिटी कहाँ है और उसकी हमारे सेंटर से डिस्टेंस कितनी है। उसी डिस्टेंस से हम लोग ऐसा एक सर्कल ऑब्टेन करेंगे और उसी सर्कल से हम एक ऐसा डिस्क बनाएंगे और ये डिस्क रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन इस वाले रीजन में, जैसे यहाँ है तो इस वाले रीजन में वैलिड है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज ऑल द पॉइंट्स एवरी टाइम। सो गिवन दैट f of z is equals to 1 upon 1 minus z, okay, f has a singularity at z equal to 1, so we can choose the disk mod of z is less than 1, okay, and for this disk we can obtain that, क्योंकि इस डिस्क के अंदर फंक्शन को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है और फंक्शन एनालिटिक है तो इसके लिए हर ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। हमने थ्योरम प्रूफ ही किया था ये। तो अगर इस रीजन में फंक्शनैलिटी हो ही गया है तो अब इसके लिए इस रीजन में इस फंक्शन का हर ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वी ऑब्टेन फर्स्ट व्हाट अबाउट द zeroth order derivative of the function. We know the zeroth order derivative is nothing but the function itself, and factorial 0 is 1. Okay, then another thing is that कि जब भी हम किसी भी इस फंक्शन के लिए जब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करेंगे तो हमेशा वो फॉर्म में आएगा -1 अपॉन -1 अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। जब फर्स्ट टाइम हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा -1 अपॉन 1 माइनस जेड क्यूब, अगेन वी विल हैव माइनस, सो अगेन इट विल बी प्लस। तो हमें जब भी हम इसके डेरिवेटिव की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी n फैक्टोरियल ओवर 1 minus z to the power n plus 1, right? So this is the nth order derivative for n equals to 1, 2 and so on. ठीक है, अब जब हम z इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें तो 0 के अराउंड सीरीज आइडेंटिफाई करनी है, तो हम कहेंगे कि जब भी हम हर एक ऑर्डर के डेरिवेटिव को 0 पर आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें मिलेगा n फैक्टोरियल ओवर 1 to the power n plus 1, that is 1. Okay, so we can write n फैक्टोरियल ओनली। ठीक है, अब क्योंकि 0 फैक्टोरियल को हमने 1 पुट कर ही लिया है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है तो हम इसे भी इसी कंडीशन में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो
including all these points, we have the Taylor सीरीज और प्रिसाइजली ये हमारे लिए एक मैक्लरेन सीरीज है. मैक्लरेन सीरीज क्योंकि z नॉट इक्वल टू 0 के अराउंड है. सो वी हैव द टेलर सीरीज f ऑफ z इज इक्वल टू, हम टेलर थ्योरम के यूज से इसको लिखते कैसे हैं, दैट इज एफ एन 0 ओवर, क्योंकि 0 के अराउंड आइडेंटिफाई करना है, ओवर n फैक्टोरियल देन z टू द पावर n. दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेलर सीरीज, राइट. अब यहाँ पर हमें बस इस फंक्शन के डेरिवेटिव को प्लेस करना है एंड वी विल हैव आवर सीरीज. So this is summation n running from 0 to infinity, and this value is always equals to n factorial over n factorial z to the power n, and obviously this is nothing but the 1 when we put the n equals to 0. So 1 plus z square plus and so on. Okay, so this is the same as this series. Look at the series, write this. Okay, तो हमने टेलर थ्योरम को यूज करके इस सीरीज को ऑब्टेन किया है और इसीलिए हमने इस सीरीज को बोला है टेलर सीरीज. ओके, अब यूनिकनेस की बात जो हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में की थी उसका यहाँ पर क्या मीनिंग है कि इस रीजन के अंदर जब भी आप इस फंक्शन का एक सीरीज रिप्रेजेंटेशन z नॉट इक्वल टू 0 के अराउंड लिखेंगे, चाहे वो दिखने में कैसा ही हो, बट वो हमेशा यही रिप्रेजेंटेशन होगा. ओके, again I am repeating, from the uniqueness of Taylor series representation, इस रीजन के अंदर इस फंक्शन का इस पॉइंट के अराउंड सीरीज रिप्रेजेंटेशन हमेशा यही होगा. इसे अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन के लिए कोई भी सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो इस वाले रीजन में है और z नॉट इक्वल टू 0 पॉइंट के अराउंड है वो हमेशा ऐसा दिखेगा और वो सीरीज ही मैक्लॉरिन सीरीज या टेलर सीरीज है. ओके, अब इस सीरीज रिप्रेजेंटेशन को हम यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज, लेट मी राइट, दैट इज वी आर हैविंग दिस वन अपॉन, क्योंकि फंक्शन हमें गिवन है 1 अपॉन 1 माइनस z, सो आई एम राइटिंग दिस एज 1 प्लस z स्क्वायर एंड सो ऑन. सो दिस इज द सीरीज रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स validity is within this disk. Okay, अभी हम इसी सीरीज को यूज करके 1 अपॉन 1 प्लस z का रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, तो ऑन replacing z by minus z in 1. ओके, 1 मीन्स यही सीरीज है जो हमने ऊपर लिखा था वही है. अब अगर हम z इक्वल टू माइनस जेड करें तो यहाँ पर बनेगा मोड ऑफ माइनस जेड इज लेस देन 1 एंड दैट इज द सेम कंडीशन. बट यहाँ पर z इक्वल टू माइनस जेड रखने से हमें प्लस जेड मिलेगा, तो ऑब्वियसली सो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस जेड प्लस minus z square plus minus z cube plus and so on, and the area of convergence is minus mod of z is less than 1. हमने बस z को minus z से replace किया है and that is equals to 1 minus z plus z square minus z cube and plus z to the power 4 and so on, and this modulus is same as modulus of z less than 1. So here we are able to obtain the series representation of 1 upon 1 plus z, okay, using that series only.